solving of what exactly is quadratic equation, an equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. The index of the equation should be, maximum index of the equation should be 2, and there should be only one variable. That was the definition of the quadratic equation. Then we learned how to solve quadratic equation. There were three methods. First was by factorization method, second by completing the squares, and third, which we are going to take today, that is by formula method. By formula method. Okay. Now before coming to formula method, एग्जैक्टली है क्या वो फार्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा. मैं भी आपको फार्मूला बोलूँगा तो आपको थोड़ा लगेगा इतना बड़ा फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बोले इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद करेंगे. बट जितने बार सम सॉल्व करोगे फार्मूला याद हो जाएगा. बट फर्स्ट वी विल सी दैट हाउ दैट फार्मूला हैज कम. सो आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of equation. हम completing the square method करते थे तो हमने पहला स्टेप क्या किया था, we divided the equation throughout by a. तो ये हो जा रहा था x square plus bx b upon a plus c upon a is equal to 0. नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले रहे थे, c अपॉन a को RHS पे ट्रांसफर कर रहे थे. x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a. देन we used to consider it, let x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस के एक के ले रहे जिसको डालने से ये पूरा इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा था. b इक्वल टू x प्लस, हर जगह हम a ले रहे थे पर यहाँ पे b और a है तो उससे कंफ्यूज हो जाएगा. तो हम यहाँ पे कोई एक दूसरा टर्म ले रहे हैं, लेट b इक्वल टू m x प्लस m द होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो ये हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2xm प्लस m स्क्वायर. फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2m इज इक्वल टू b अपॉन a मिल रहा है. 2m इज इक्वल टू b अपॉन a मिल रहा है. तो m इज इक्वल टू b अपॉन 2a मिल रहा है. m इज इक्वल टू b अपॉन 2a मिल रहा है. एंड हमको k इज इक्वल टू m स्क्वायर मिल रहा है और n है b अपॉन 2a. तो दिस इज इक्वल टू b अपॉन 2a द होल स्क्वायर. दिस कम्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. दिस कम्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. तो हम हमारे इस इक्वेशन में लिखेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया हमको. अब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे. Adding b square upon 4a square to both sides. This will be x square plus b upon ax plus b square upon 4a square is equal to, यहाँ पे खाली माइनस c था, ये भी ऐड कर देंगे, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a. Your LHS will become a perfect square. This will be x plus b upon 2a the whole square. Your LHS will become a perfect square. और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4a करेंगे दोनों साइड डिनोमिनेटर इक्वेट करने के लिए.
मल्टीप्लाइड बाय 4a होगा दोनों साइड. दिस विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. This will be b square minus 4ac upon 4a square. Taking square roots, x plus b upon 2a will be plus and minus. X plus b upon 2a will be plus and minus. ये नीचे वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है 2a हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो सकता है तो उसको अंडर रूट ले लेंगे हम. स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. We take b upon 2a that side, therefore x is equal to minus b upon 2a plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. When we merge this equation, x is equal to minus b plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is our equation which we need now to solve the quadratic equation in your exercise number, practice set number 2.4. X is equal to minus b plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So now our formula is x is equal to minus b plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Before I proceed, let me tell you one new term. That term is called discriminant. This b square minus 4ac, b square minus 4ac is known as discriminant. This b square minus 4ac is known as discriminant. Now this compare करेंगे तो there are three parts. This b square minus 4ac can be equal to 0. This b square minus 4ac can be greater than 0, and this b square minus 4ac can be less than 0. ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर है, this is known as discriminant, and the value of that b square minus 4ac can be equal to 0, value can be greater than 0, and value can be less than 0. मान के चलते हैं, एक आध एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस 0 अपॉन 2a. तो हमको क्या मिलता है आंसर, माइनस बी अपॉन 2a मिलता है. एक सिंगल एकलौता आंसर मिलता है. प्लस एंड माइनस 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, तो वहां पे उड़ गया माइनस बी अपॉन 2a. तो हमको सिंगल एकलौता आंसर मिलता है. So we say that the roots यहाँ पे हमारे रूट्स मतलब जो हमारे आंसर आएंगे आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड यूनिक आना चाहिए, वन एंड ओनली वन आना चाहिए, पर यहाँ पे रियल एंड इक्वल लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्लस एंड माइनस की साइन है. दो आंसर आ रहा है तो दोनों आंसर सेम आ रहा है, इसके लिए हम कहते हैं कि दे आर रियल एंड इक्वल. दे आर रियल एंड इक्वल. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मैं एक फिगर ले लेता हूँ कि 5 का फिगर ले लेता हूँ. चलो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 है,
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस √5/2a है। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, माइनस बी प्लस √5/2a माइनस बी माइनस √5/2a। मेरे पास दो आंसर आ रहे। तो क्या आया, दो आंसर आए मतलब दो रूट्स आए, मतलब क्या हुआ, दे आर रियल एंड अनइक्वल। दे आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों आंसर अलग अलग आए हैं, दोनों रूट्स अलग अलग आए हैं, एक पॉजिटिव आया है एक नेगेटिव आया है, तो दे आर सेड टू बी रियल एंड अनइक्वल। फिर उसके बाद मेरा b² - 4ac <0 होगा, तो मैं एक टर्म ले लेता हूं कि 5 लिया, मैं अभी -5 ले लेता हूं। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस √-5/2a। ठीक है, √-5/2a। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? मतलब आपने अगर 5 × 5 किया तो क्या होता है, 25 होता है, और -5 × -5 किया तो भी 25 होता है। कोई भी दो नंबर, कोई भी तो दो सिमिलर नंबर का स्क्वायर करो तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। कोई भी दो स्क्वायर नंबर, कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आएगा उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट, अंडर रूट कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया है, यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि अपॉन जीरो नहीं हो सकता, इट इज एन अनडिफाइंड नंबर। तो ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर का नंबर, कोई भी स्क्वायर का नंबर हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो 5 है। पर कहीं भी आप कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करो, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करो तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये अनरियल नंबर है, अनरियल रूट्स है। हम बोलेंगे ये अनरियल सॉल्यूशन है, अनरियल आंसर है, अनरियल रूट्स है। तो हमारा इसका आंसर आएगा द रूट्स आर अनरियल। द रूट्स आर अनरियल। तो ये आपको जानना जरूरी है कि b हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b² - 4ac के तीन वैल्यूज हो सकते हैं, वो या तो 0 हो सकता है, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो लेस देन 0 हो सकता है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हमारा सिंगल आंसर आता है। तो इसके लिए हम उसको फाइनली उसको हम बोलते हैं कि दे आर रियल एंड इक्वल। द रूट्स, द सॉल्यूशन, द आंसर्स आर रियल एंड इक्वल। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे डबल आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस है तो दो आंसर आते हैं। तो वी से देयर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे अगर लेस देन 0 है, अंडर रूट माइनस हो रहा है, विच इज एन अनडिफाइंड टर्म राइट नाउ, तो वी से द रूट्स आर अनरियल, द सॉल्यूशन इज अनरियल, द आंसर इज अनरियल। ठीक है, तो रूट्स आर अनरियल। यहाँ पे हम रूट्स निकालने की नहीं कोशिश करते। अगर अंडर रूट में हमको b² - 4ac हमको लेस देन 0 आया, अगर एक नेगेटिव नंबर आया तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहीं पे रुक जाएंगे। हम बोलेंगे द रूट्स आर, सिंस b² - 4ac इज लेस देन 0, द रूट्स आर अनरियल। ठीक है, so practice number 2.4 starts with the first question, that compare the given quadratic equation to the general form and write the values of ABC. So that is much more easier, you can do it on your own. पहला वाला है x² - 7x + 5 = 0, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a = 1, b = -7 और c = 5 आएगा। दैट इज सिंपल एज दैट only has to be written.
हम चलते हैं सॉल्विंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला. तो वी विल फर्स्ट टेक द फर्स्ट वन, x square plus 6x plus 5, x square plus 6x plus 5 is equal to 0. We have comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to 6 and c is equal to 5. A is equal to 1, b is equal to 6. तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे. देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे हम. दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5. दिस विल बी 36. 5 4s are 20, will give you 16. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 आया है. तो हमको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि हमारे दो आंसर्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे. ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू ऑलवेज राइट फॉर्मूला वंस माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वी हैव b का वैल्यू 6 है, माइनस 6 प्लस एंड माइनस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया था 16 अपॉन 2 इंटू 1. ये हमको मिलता है माइनस 6 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी 4 अपॉन 2. ठीक है. स्प्लिट कर लेते हैं. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 5. देयरफॉर माइनस 1 minus 5 is the solution of the given quadratic equation. X is equal to minus 1 or x is equal to minus 5 is the solution of the given quadratic equation. Question number 3. 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 7. A is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 7. Therefore b square minus 4ac का वैल्यू निकालेंगे हम. 2 to the 2 square minus 4 multiplied by 3 multiplied by minus 7. This will be 2 to the 4, 7 to the 21, 21 4 to the 84 and minus into minus will give you plus 84. Okay, this will give you 88. Now b square minus 4ac जो आया है वो greater than 0 आया है. So we will get real roots and we will get two distinct roots, two different roots. Okay. Now x is equal to minus b plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. We write this as minus 2 b की जगह पे plus and minus square root of 88 upon 2 multiplied by 3. ठीक है.
So now square root of 88 can be written as square root of 88 can be written as 4 multiplied by 22 or 2 root 22 or 2 root 22. This is equal to minus 2 plus and minus 2 root 22 upon 2 into 3. 2 कॉमन ले लेते हैं. ओके, we take 2 as common. 2, what is left? Minus 1 plus and minus root 22 upon 2 into 3. We take it minus 2 minus 1 plus and minus root 22 upon 2 into 3. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल हो जाएगा. We are left with minus 1 plus and minus square root of 22 upon 3. Separate it. Therefore x is equal to minus 1 plus root 22 upon 3 or x is equal to minus 1 minus root 22 upon 3. Therefore minus 1 plus root 22 upon 3 and minus 1 minus root 2 upon minus 1 minus root 22 upon 3 are the roots of the given quadratic equation. We take one more sum. Y square plus 1 upon 3 y is equal to 2. ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा तो हम इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3 कर रहे हैं. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3. So this will become 3y square plus y is equal to 6. स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं. 3y square plus y minus 6 is equal to 0. 3y square plus y minus 6 is equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to minus 6. b square minus 4ac फाइंड आउट करेंगे. b square minus 4ac is equal to 1 square minus 4 multiplied by 3 minus 6. What we get here is 1, 4th is a 12, 12 6 are 72 plus 72. So what we get is 73. 1 plus 72 is equal to 73. X is equal to minus b plus and minus square root of b square minus 4ac upon 2a. सब्स्टिट्यूशन करेंगे. minus 1 plus and minus square root of 73 upon 2 multiplied by 3. What we get? minus 1 plus and minus root 73 upon 6. सेपरेट कर दो. x is equal to minus 1 plus root 73 upon 6 और x is equal to minus 1 minus root 73 upon 6. Therefore minus 1 plus root 73 upon 6 minus 1 minus root 73 upon 6 are the roots of the given quadratic equation. Now we take the last sum for today.
प्रॉब्लम सेट टू क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम सेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने जो छोड़ के रखा था, आपको बोला था वो ट्राई नहीं करना. देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस. So I am taking this now, comparing with x square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 5, b is equal to 2 and c is equal to 1. Therefore b square minus 4ac is equal to b square minus 4ac is equal to 2 square minus 4 multiplied by 5 multiplied by 1. 2 square minus 4, a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 1 है. What we get is 4 minus 5 4 are 20. Then we get this as minus 16. Now b square minus 4ac हमको minus 16 आया है, which is less than 0. Which is less than 0. Okay. Therefore, the roots of the given quadratic equations are not real. ये आप लिख के आंसर यहाँ पे खत्म कर दोगे. अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. ओके, सो यू हैव द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.